Okay, dear students. First of all, I will ask questions from the previous taught topic. Okay. So my first question is, give me example of marginalized group. Okay, you have raised the hand. Let me see. Marginalized group, hand raised there. Okay. Atharv, unmute. Marginalized. Margin say marginalized. Okay, good, good. I don't see you. Your face is not visible. Is your camera off, Atharv? Keep your cameras on. Keep your cameras on if possible. Okay. Okay. We are doing which chapter? Chapter 21, right? Okay. So it is chapter 22. Last chapter we are doing. So chapter 22. Just wait. Okay. In constitutional provisions, हम लोग कल किए थे fundamental rights, in which we had right to equality, right? Right to equality we had read. Productive discrimination we had learned. After that, untouchability, right against exploitation. So, who will answer right to equality? How does it help marginalized group or anybody? Who will answer? Who wants to answer? Okay. Okay, let me ask. Question is, which three constitutional provisions of the Indian Constitution safeguard the marginalized in India? Is it long? Is it long question? Then let me ask simple question first. Okay. Ronit wants to answer. Okay, Ronit, unmute. Ron. Okay. Answer. Yes, Ronit. Okay, I'm not getting your voice. Okay. In constitutional provisions, how our constitution protects the marginalized group, how it safeguards them. Okay, first thing we had read about fundamental rights, है ना, right to equality and productive discrimination. ठीक, उसके बाद protective discrimination, in that which we had read about reservation, है ना, ताकि मार्जिनाइज ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जा सके. वी हैड रेड अबाउट दैट. फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वी हैड रेड. उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें तीन चीज मेन था. देयर कैन नॉट बी एनी बेगार और फोर्स्ड लेबर, है ना. फिर क्या था, बिलो 14 years चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन टू डेंजरस एम्प्लॉयमेंट, लाइक दे कैनॉट वर्क इन माइन और फैक्ट्री, राइट. और एक और क्या था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इट इज इलीगल. इंसानों को, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो, उनको यहाँ से वहां किसी अपने प्रॉफिट के लिए जो मूव करते हैं, खरीदते बेचते हैं, दैट इज ऑल्सो इलीगल, दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड. तो हम लोग ये सारा कल पढ़े थे. आज हम लोग पढ़ेंगे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, आई विल गिव चांस टू समबडी फॉर रीडिंग इट. केशव कृष्ण. केशव. Okay. Ankita. Keshav, are you unmuted? Okay.
Okay. Okay, I'm not getting his voice. Tamanna Kumari, you are ready? Keshav? कौन सा पढ़ना है बाबू? Yes, yes. Start reading. Start reading. Mm-hmm. Wait. Boys and girls, because it is recording, so if possible, keep your video on. Camera should be on if it is possible. अगर डेटा की प्रॉब्लम नहीं है तो अपना कैमरा ऑन करो क्योंकि रिकॉर्डिंग में ब्लैंक स्क्रीन जाएगी बाबू. इज गुड. ठीक है, पढ़ो. ओके. ओके. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. वन मोर पर्सन विल रीड. Ananya, unmute yourself. Read the same para. Read the same para. Okay, wait Ananya. Not enforceable. Circle कर दो. इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता यानी बाध्य नहीं कराया जा सकता. नॉट इन्फोर्सेबल. सर्कल. ओके. 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 क्लोज हेयर ब्रैकेट एंड एट सेकेंड लाइन आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप दे डायरेक्ट. वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो. इज इट क्लियर? दे डायरेक्ट द स्टेट. वहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, पैरा के लास्ट पे क्लोज होगा. नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाम से ही क्लियर है, स्टेट को डायरेक्शन मिल रहा है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए. कैसे गवर्नमेंट वर्क करेगी उसके लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है स्टेट पॉलिसी में. ठीक है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना है. माई वॉइस इज नॉट कमिंग. ओके, जस्ट लेट मी चेक. It is not clear. Babu, this is network problem then. Network problem there is. It means you will need to watch the video after class. ठीक है. अगर क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है. तो अगर कुछ नहीं क्लियर होता है देन यू विल नीड टू वॉच द वीडियो लेटर ऑन. ओके. अच्छा रुको, हम ईयरफोन हटाने से पहले क्लियर थी क्या आवाज? नेट. अब तो हम ईयरफोन पे जाना चाहिए. ओके, अभी कम है.
अभी ठीक है या ईयरफोन के साथ ठीक है? दोनों ठीक है? ओके ओके। अभिषेक कुमार बाबू अपने हेयर को कॉम नहीं किए हो क्या? क्लियर दिख रहा है, लगातार हेयर कॉम्बिंग कर रहे हो बाबू, कॉम कर, है ना अभिषेक कुमार? ओके चलो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या हो रहा है, स्टेट कैसे पॉलिसी बनाएगी, कैसे फंक्शन करेगी, उसके बारे में डायरेक्शन दिया जा रहा है। ठीक, इसमें क्या है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको गवर्नमेंट को बाध्य नहीं किया जा सकता है इसके लिए, इसके बारे में कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर रही है। ठीक है, जहां से हम लोग पैरा स्टार्ट किए, इसमें क्या है, दे डायरेक्ट द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है, जब गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो इसी गाइडलाइंस पे वो को फॉलो करके काम करेगी। इसमें अंडरलाइन करो, मिनिमाइज लास्ट थर्ड लाइन, मिनिमाइज द इक्वालिटीज इन इनकम, अंडरलाइन कर दो, एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस। ठीक, अब गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है, डायरेक्शन है गवर्नमेंट के लिए कि वो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को खत्म करेगी, लेकिन इसका मतलब गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती है ना कि किसी डॉक्टर का सारा पैसा अर्न किया हुआ छीन ले और किसी लेबर को वो पूरा इनकम दे दे, या आधा डॉक्टर जो काम कर रहा है उसका आधा इनकम उठा के वो लेबर को दे दे। ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है क्या? नहीं, नहीं कर सकती है। इसलिए ये डायरेक्शन तो है, लेकिन ये इनफोर्सेबल नहीं है, इसको इनफोर्स नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में इस पे केस नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या काम करेगी, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाएगी, ऐसा उपाय करेगी कि गरीब लेबर को भी काम मिले और उसकी अर्निंग इंप्रूव हो। क्लियर है? ओके, सेकंड क्या है, इन एलिमिनेट मतलब रिमूव, खत्म करना। ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस, रिच एंड पुअर के बीच में जो स्टेटस है, या किसी आदमी का अपने पोस्ट के वजह से जो स्टेटस है उसकी इनइक्वालिटी को खत्म करना। जैसे अगेन एक एग्जांपल लो, एक कांस्टेबल है, ठीक, और दूसरा डीएसपी है, तो दोनों का स्टेटस डिफरेंट होगा क्योंकि एजुकेशन लेवल दोनों का डिफरेंट है, दोनों की इनकम डिफरेंट है, उनके हाथ में पावर जो है उसमें डिफरेंस है। तो क्या गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है कि कांस्टेबल को एंड डीएसपी दोनों को इक्वल प्रॉफिट या इक्वालिटी दे दे? नहीं पॉसिबल ना, नहीं पॉसिबल है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो डीएसपी के लिए भर्ती होगी तो उसमें अगर कांस्टेबल भी एजुकेटेड है, कैपेबल है, तो वो उसका एग्जाम देगा और वो अगर उसको क्लियर कर लेता है, अगर वो कैपेबल है, तो वो डीएसपी बन जाएगा। कर सकता है ना, है ना? तो इस तरह से ये, यस, तो इस तरह से गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि इनकम की एंड स्टेटस की जो इनइक्वालिटीज है वो खत्म हो, लेकिन वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती है इसके लिए, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि वो पढ़ लिख के एजुकेशन लेके अपना अपना अपने आप को इम्प्रूव करके स्किल डेवलप करके वो हायर स्टेटस तक पहुंच जाए। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा हो गया। एंड गवर्नमेंट का काम क्या है, नीचे के सेकंड लास्ट लाइन में अंडरलाइन करो, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकाल रही है, स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, टीचर्स हायर कर रही है, तो फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी दे रही है ना गवर्नमेंट एक कांस्टेबल को कि वो भी पढ़ लिख के वो भी ज्वाइन कर सके हायर स्टेटस, हायर इनकम ग्रुप को वो ज्वाइन कर ले। तो गवर्नमेंट का काम है कि फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करे। अगर विलेज में हाई स्कूल नहीं होते हैं तो वहां की गर्ल्स को दूर जाके एजुकेशन लेना मुश्किल हो जाता है, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोशिश करेगी कि विलेज में जितना पास हो सके, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो 3-4 विलेज के बीच में एक हाई स्कूल खोल दे,
ताकि वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो गर्ल्स है, वो भी एजुकेशन ले सके। तो यानी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की। क्लियर? तो ये हमारे डायरेक्शन जो दिया गया है गवर्नमेंट को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, किस प्रिंसिपल्स पे काम करेगी, उसका डायरेक्शन कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? बट नॉट इनफोर्सेबल, ये वर्ड याद रखने वाला है। इस पे केस नहीं किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। कांस्टेबल पढ़ के एग्जाम क्रैक करके तो डीएसपी बन सकता है, लेकिन वो कोर्ट में जाके ऐसे केस नहीं कर सकता है कि मेरा और डीएसपी के बीच में स्टेटस इक्वल नहीं है। वो ऐसा नहीं केस कर सकता है। इट इज नॉट इनफोर्सेबल। क्लियर है मीनिंग? ओके, नाइस। ओके, नाइस। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। आदित्य, अनम्यूट। आदित्य बाबू, कैमरा ऑन होना चाहिए ना? इफ योर कैमरा इज नॉट ऑन देन ब्लैंक स्क्रीन विल बी देयर। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन विल बी देयर। सो इफ यू वांट टू स्पीक एंड रीड देन कीप योर कैमरास ऑन। रेडी? आदित्य रेडी? ओके, ठीक है, तो तुमको हम स्क्रीन पे ले आते हैं आदित्य। ओके, ओके, स्टार्ट रीडिंग। ओके, नाइस। रिजर्वेशन, हम लोग प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन में कल पढ़े थे ना कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन यूज किया गया है ना? तो इसमें स्टार्ट में सिर्फ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन बाद में ओबीसी को भी इंक्लूड कर लिया गया। इसके इसके वजह से क्या हो रहा है कि अदर माइनॉरिटीज जो ग्रुप है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन मिले। ठीक, तो इससे क्या हो जा रहा है कि इस अगर सबको रिजर्वेशन दे दिया जाए तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनके लिए सीट्स जो बचेंगी वो बहुत कम हो जाएंगी, है ना? ये प्रॉब्लम होगी। तो अब ये डिस्कशन है कि आखिर ये रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो बैकवर्ड जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उसको अपलिफ्ट करना, ऊपर उठाना मुश्किल होगा, है ना? उनकी इनकम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो जाके स्टेटस, हायर स्टेटस, इक्वल स्टेटस अचीव कर पाएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्या क्या वर्क की है ताकि इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल रीड। लेट मी सी, जिसका कैमरा होगा ऑन होगा उसको ज्यादा चांस मिलेगा, पहले मिलेगा। प्रियांशु रजक, अनम्यूट। प्रियांशु, ओके। ओके, प्रियांशु थोड़ा लाउड बोलो।
obnoxious, obnoxious, obnoxious substance. ओके, obnoxious को अंडरलाइन कर दो. obnoxious, I will ask the meaning of it. I will ask meaning of this word, obnoxious substance. ठीक है, आगे. ओके, dispossessing, dispossessing, इस वर्ड को भी अंडरलाइन करो. dispossessing. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, ओके, ओके. सो गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के लिए द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज को अंडरलाइन करो. प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. ठीक, तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पे अत्याचार न हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, एट्रोसिटीज ना हो, अत्याचार ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट लाया गया 1989. ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज. जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाया गया जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. ठीक, सबसे पहले स्पेशल कोर्ट बनाया गया ट्रायल के लिए कि अगर ये ऑफेंसेस होते हैं, ऑफेंसेस यानी ऐसा कोई काम करता है, क्या क्या काम है इसमें हम लोग देखते हैं. अगर किसी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को कुछ भी ऐसा ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस खिलाया या पिलाया जाए, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको फोर्स करके उसके मुंह में कुछ भी गंदा डाल दिया जाए, ऑब्नॉक्शियस, नॉट एडिबल जो हो. ठीक है, जैसे पनिशमेंट के तौर पे कभी कभी न्यूज में सुनते होंगे तो. यस, ओके, ओके. अब यस यस, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट में क्या है, जैसे कभी कभी अगर तुम लोग न्यूज सुनते होगे ना तो कभी कभी ये न्यूज आती है कि पंचायत ने सजा के तौर पे उसके मुंह में गंदा पानी, नाली का गंदा पानी या टॉयलेट या कुछ गंदा चीज जो घृणा, जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, वो उसके मुंह में डाल दिया गया पनिशमेंट के तौर पे, है ना. ऐसा न्यूज सुनोगे तुम लोग. तो दैट इज ऑब्नॉक्शियस, जो अनप्लीजेंट चीज हो, अनप्लीजेंट सब्सटेंस हो. ठीक, मान लो जैसे शू है, शू है पैर में हमारे है, अनहाइजीनिक है, अगर सजा के तौर पे उठा के कोई मुंह में बोले उसको दांत से पकड़ो पनिशमेंट के लिए, तो वो ऑब्नॉक्शियस हो गया ना, अनप्लीजेंट चीज है ना मुंह में डालने के लिए. तो ये पनिशमेंट के तौर पे अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ कोई ऐसा काम किया तो वो पनिशेबल है. एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, वेरी गुड. ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग क्या हुआ, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, वेरी गुड, मीनिंग आ गई, वेरी नाइस. इसके बाद अगर इंसल्ट करता है कोई या अनॉय करता है, तंग करता है या बेइज्जती करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर की, जैसे उसको गाली दे देना, उसकी इंसल्ट करना, बोलना मेरे साथ तुम नहीं बैठ सकते हो, उधर दूर जाके बैठो. अगर इंसल्ट कर रहा है, अगर उसको अनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उस पर भी केस किया जा सकता है. फिर तीसरा क्या है, wrongfully dispossessing. What is the meaning of dispossessing? तुम्हारा बैग है, टेक अवे, वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस यस बाबू, छीन लेना, वेरी गुड. जैसे मान लो हमारा घर है,
हमारा घर है, ठीक। अगर उसको कोई रॉन्गफुली, यानी हमने बेचा नहीं उसको, लेकिन कोई आके उस पर कब्जा कर ले और हमको वहां से निकाल दे, ठीक, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। वैसे ही शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पीपल को कोई भी रॉन्गफुली उनको डिस्पोजेस नहीं कर सकता, यानी उनके लैंड से निकाल नहीं सकता है। जहां वो रह रहे हैं, वो चाहे जंगल हो, पहाड़ का एरिया हो, उनका घर हो, उनको वहां से निकाला नहीं जा सकता है, ठीक। इसके बाद उनको कंपेल करना कि वो बेगार करे, बेगार यानी फोर्स लेबर, यानी काम करवा रहे लेकिन पैसा न दे, या उसका मन ना हो काम करने का और उसको फोर्स करे, ठीक है। जब काम के बदले पैसा ना दिया जाए या उसको जबरदस्ती काम कराया जाए, उसको बेगार बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ऑफेंसिव। इसके इसके वजह से भी कोर्ट में केस किया जाएगा और स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चलेगा। इसके अलावा अगर किसी को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फोर्स किया जाए कि वो किसी को वोट ना दे या फिर किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दे, तो ये भी ऑफेंस है। इस पे भी एट्रोसिटीज एक्ट के अगेंस्ट में उसमें केस चलेगा, ठीक। और उसके बाद क्या है, किसी भी विमेन को जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। इसमें से ज्यादातर चीज तुम लोग देखोगे कि नॉर्मल सिटीजन, इंडियन सिटीजन को भी ये सारा राइट मिला हुआ है। अंतर सिर्फ ये है कि अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का केस है तो वो स्पेशल ट्रायल कोर्ट में चलेगा और उस पे ज्यादा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सजा दी जाती है। क्लियर? फिर क्या है, जिस भी बिल्डिंग में वर्शिप कर रहे हो ह्यूमन, या जहां वो रह रहे हो, ह्यूमन ड्वेलिंग जहां हो, वर्शिप हो, वहां से उनको निकाला नहीं जा सकता, उस बिल्डिंग को डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन इसका क्या मतलब है, मान लो गवर्नमेंट की जमीन पे जाके मंदिर या मस्जिद बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। माइनॉरिटी के नाम पे अगर हम कहें कि हम तो रोड के बीच में मंदिर बना लेंगे, या नहीं, मंदिर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो माइनॉरिटी नहीं हुआ। माइनॉरिटी का मतलब जिसका नंबर कम हो, अल्पसंख्यक। तो बीच में, रोड के बीच में मस्जिद खड़ा कर सकते हैं क्या? मजार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है ना। तो अगर वैसा है तो वहां पे ये लागू नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज जो उनका ह्यूमन ड्वेलिंग होगा, ड्वेलिंग यानी जहां वो रहते हैं, घर वो या टेम्पल, उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है, डिसकंस्ट्रक्ट उसको नहीं किया जा सकता है। क्लियर? इज इट क्लियर? दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है ये, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ। क्वेश्चन कैसे आता है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? एक्सप्लेन अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो इसमें से एटलीस्ट 5 पॉइंट तो तुमको पता होना ही चाहिए। क्लियर? ओके। क्या बाबू? मेट्रो सिटीज बोलते हैं ना, जो जैसे बड़ा शहर जो है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे दिल्ली, कैलकाटा, बॉम्बे। ओ एट्रोसिटीज का मतलब अत्याचार बाबू, एट्रोसिटीज अत्याचार। और चेक करके बताओ, कौन बताएगा एट्रोसिटीज का? यस बोलो। हाँ आंसर है, लेकिन क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि 3 ही सेक्शन आज है ना, मेरा एक सेक्शन आज इसमें नहीं है ग्रुप में, तो हम लोग क्या करें फिर, अगर उन लोग का छूटेगा और सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम लोग का टाइमिंग लेट हुआ है, तो कम बच्चे ज्वाइन किए हो, है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोग को फिर से क्लास में करना होगा। तो अभी मिल गया है तो मार्क करके रख लेते हैं, लेकिन ये क्लास में हम लोग फिर से करेंगे। ओके ना? ओके चलो, तो अब हम लोग लास्ट पैरा भी देख लेते हैं। विल रीड, लेट मी सी लास्ट पैरा।
जिसका कैमरा ऑन है उसको हम चांस दे रहे हैं। आयुषी राज, अनम्यूट। आयुषी राज, चलो पढ़ो बाबू, पढ़ो। अंडरलाइन कर दो इसको, अंडरलाइन कर दो इस लाइन को। दिस लॉ, वहां से लेके ड्राई लैट्रिन्स वहां तक अंडरलाइन कर दो। ओके, 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 नाइस। सो नाउ अगेन, एक तो ऊपर में गवर्नमेंट का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हो गया 1989 का। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स तुम लोग साइंस में पढ़े होगे। बर्ड्स के मामले में ये वर्ड होता है, बर्ड्स के मामले में ये होता है याद। यस, यस, स्कैवेंजर्स जो बर्ड्स होते हैं जैसे गिद्ध, है ना, ये लोग क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज होती है उसको खाते हैं। अगर वो नहीं खाए, ऐसे तो बहुत गंदा लग रहा है कि वो डेड बॉडीज को खाते हैं, लेकिन अगर वो उसको ना खाए तो वो बॉडी सड़ती रहेगी, बीमारी फैलेगी, फैलेगी ना। तो वो स्कैवेंजर्स जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही जो स्कैवेंजर्स हैं, यहाँ पे स्कैवेंजर्स किसको बोल रहे हैं, जो मैनुअल वर्क करते थे। जैसे अभी तो हम लोग का मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। शहर में क्या होता है कि हमारा जो लैट्रिन होता है, टॉयलेट होता है, वो उसमें फ्लश करने का सिस्टम है, ठीक। टंकी बनाई जाती है ग्राउंड में टंकी बनी होती है, तो उसको उसमें कहीं भी हैंड से कुछ सफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर वो भर गया तो वो क्लीनिंग के लिए ट्रक बुलाते हैं, वो उसमें पाइप लगा के सारा उसको खींच लेता है बाहर, और वो जाके कहीं पर डिस्पोज करता है, नाला ये सब में डाल देता है। लेकिन पहले क्या होता था कि या या विलेज ये सब में, मेरे चाइल्डहुड में मुझे याद है कि बगल के एक घर में एक टॉयलेट था, वो जैसे सीट होती है वैसे बना हुआ है, नीचे में होल बना हुआ है, और उसको नीचे में होल में एक तरह से बॉक्स तरह का स्ट्रक्चर था जो बाहर की तरफ खुलता था। उसके नीचे बकेट रखी होती थी, बकेट या ड्रम, ठीक। तो उसको आके मैनुअली कोई उठा के उस सारी गंदगी को वहां से फेंकता था, हटाता था, ठीक। तो उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर, जो हाथ से उसकी सफाई करे। तो तुम अब ये सोचो, जो हाथ से उसकी सफाई कर रहा है, ऑब्वियस है वो बहुत पुअर होगा, और वैसे वैसे काम करने वालों के साथ क्या सोसाइटी इक्वल बिहेव करेगी? उसको अपने घर शादी में बुलाएगी? उसके बच्चों को अपने बगल में बैठने देगी? नहीं देगी ना, क्योंकि हिसाब से तो वो बहुत गंदा काम हो गया ना, सबसे गंदा काम हो गया वो। मतलब पब्लिक का लैट्रिन वो उठा के फेंक रहे हैं, तो ये तो बहुत गंदा काम हो गया ना। तो ये हेल्थ हजार्ड भी है, ये उनके लिए भी खतरा है, बीमारी फैलेगा, ठीक। तो इसको प्रोहिबिट किया गया कब? 1993 में। सोचो, हम लोग को आजादी 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद कितने साल के बाद ये हटाया गया, ठीक। तो इसमें क्या गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन को, वैसा जो लेट्रिन था ड्राई लेट्रिन, क्योंकि उसमें फ्लश करने का सिस्टम नहीं था, उसको बैन कर दिया गया। क्लियर है ना, उसको बैन कर दिया गया। लेकिन रेलवेज में ये सिस्टम अभी भी था, रेलवेज में अभी भी वो सिस्टम था, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, तो उसकी भी क्लीनिंग मैनुअली होती थी। तो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दायर किया गया,
और इसको भी बैन करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, और ये 2003 में, ठीक है, ये बैन करने का रिक्वेस्ट ये फाइल किया गया। क्लियर है? ओके, तो हम लोग की क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, 1 बज गया है, हम लोग की क्लास ओवर होने वाली है ना। तो कल हम लोग मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो काम बंद कर दिया गया तो उसमें जो लोग लगे हुए थे उनको कोई दूसरा काम देना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव करेंगे ना, है ना। तो उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। अब हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है ना।